Hello guys, how are you all? This is me, your Vedantu master teacher Arvind Sir. I welcome you all in this series under Bridge course again guys. I hope you guys are enjoying the videos that we are making on how to make graphs, right? है ना, ब्रिज कोर्स के अंदर ये जो सीरीज चल रही है, आई होप यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ इट एंड एंजॉइंग ग्राफ्स, राइट? सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार टुडे, आई विल समराइज दैट, right? I'll summarize that under graphs with the things which we have learned so far, right? So we have discussed four things, right? Additive in X, additive in Y, multiplicative in X, and multiplicative in Y, right? Four things we have studied. That means if we are having some graph of Y is equal to expression of X, right? And we want the graph of expression which we get after replacing X by X plus alpha, right? What do I mean by this thing? Let's say I'm having a graph of Y is equal to X square plus X, right? And I want to draw the graph of X square, X plus 1 ka whole square plus X plus 1. X plus 1 ka whole square, है ना? X plus 1 ka whole square plus X plus 1. How do I get graph of this expression from this expression, right? Is what transformation is all about. If we replace every x in this expression by X plus 1, will we get this expression or not? Will we get this expression or not, right? The graph of this expression is another process, but if we know the graph of this thing, we can make the graph of this one, right or not? Everybody agrees? Everybody agree? Okay. All right, this form which is written over here, if we expand it, what do we get? What do we get? X square plus 2x plus 1 plus x plus 1, isn't it? That means I'm getting a graph of y is equal to x square plus 3x plus 2 as well, right or not? Either this expression is written or this expression is written. Both are same things, isn't it? Isn't it, guys? That means we can get graph if we know some basic graphs, right? We can draw complex graphs as well if we know the simpler graphs, right or not? This is what the idea of transformation is, isn't it? Okay, so whenever we replace x by x plus alpha, whenever we replace x by x plus alpha and we get another expression, right? The graph of this expression will move either left or right, either left or right. Left कब move करेगा? Whenever this alpha over here is greater than 0. That means here it was x plus 1. 1 is positive, right? So the graph of this expression right over here will move leftwards by 1 unit and we will get the graph of this expression, or I can say this one, right or not, guys? Right or not? है ना? This is the idea of transformation is, है ना? यही होता है. Or whenever this alpha is negative, the graph moves. The graph moves where? Rightwards, है ना? Along the x-axis, as if somebody is pushing it, है ना? Shape remains intact. Shape remains intact. सिर्फ ऐसा सोचो कि कोई उस ग्राफ को पुश कर रहा है towards positive right axis, isn't it? I told you guys in the earlier videos, है ना? Agree with me? Acha. Next thing which we studied was additive in Y, right? If I'm having a graph of this expression, right? Let's say I'm having a graph of y is equal to x square, है ना? इसका मेरे पास ग्राफ है, and I want to draw the graph of x square plus 1, right? How do I reach to this expression from this? By replacing every by what? Y को किससे रिप्लेस कर दूं? y minus 1 से. तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो इसके हर y के अंदर अगर मैं y minus 1 डाल देता हूं, if I put, what I'll get? y minus 1 is equal to x square, isn't it? That is y is equal to x square plus 1, right or not, guys? I'm getting this expression or not, right? If I know how to draw the graph of this one, how I'll draw the graph of this one? कैसे? इस ग्राफ को वर्टिकली मूव करवाऊंगा. ऐसे किसी ने उठा लिया है या किसी ने नीचे धकेल दिया है, राइट? है ना? एज इफ समबडी इज
pulling it or as if somebody is pushing it vertically, right? In this case also, the shape of the graph remains same, isn't it? Isn't it? Or whenever this alpha is positive, graph moves downwards, vertically downwards, नीचे चले जाता है. पिछले वीडियोस में दिखाया था, आज फिर देखेंगे इस चीज को, कोई बात नहीं. लेकिन as of now, remember these things to the students, especially to the students who are watching this video for the very first time, right? This series for the very first time. All right, whenever this alpha is negative, that means if I am replacing y by y minus 1 and I'm getting another expression as if this one, right? So the graph of this one will move vertically upwards, right? Whenever I replace y by y plus alpha, the graph will move vertically upwards or downwards. Upwards कब move करेगा? Whenever this alpha का value is negative. Look over here. This is minus 1. This is negative. राइट तो जब भी मैं y माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया, y को y माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट आई गेट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा एक्सप्रेशन? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन गाइस? विल इट बी x स्क्वायर प्लस 1 और नॉट? द ग्राफ विल मूव वर्टिकली upwards in this case, vertically upwards. Why vertically upwards? Because alpha is negative here and I am replacing y by y minus some positive number. Y minus some positive number, can I say? है ना? Right or not? Agree? Okay guys. So whenever I replace y by y plus minus some number, right, graph will move vertically, है ना? और x को जब भी मैं रिप्लेस करता हूं x प्लस माइनस से, तो my graph moves horizontally. Isn't it? Everybody clear with these two things? है ना? Clear? Okay guys. Okay. Super. है ना? Okay. The third thing that we have studied was what? Multiplicative in x. Multiplicative means what? Let's say I'm having a function y is equal to f of x. Let's say y is equal to x square. Right? And I want to go to a function which is y is equal to 4x square. 4x square. How can I reach there? If I replace every x here by 2x, every x in this expression by 2x, will I get this expression or not? करके देख लेते हैं. y is equal to x की जगह क्या डालना है? 2x. तो 2x का whole square. What do I get? y is equal to 4x square. Am I getting this expression or not? Getting? है ना? तो अल्फा का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो अनदर केस बनेगा, और जब अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो दूसरा केस बनेगा, राइट? जब भी अल्फा ग्रेटर देन 1, एज इफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग अल्फा कितना था? 2 था, विच इज ग्रेटर देन 1, है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, एज इफ उसको दोनों तरफ से कोई प्रेस कर रहा है, राइट? स्क्वीज कर रहा है ना? दोनों तरफ से कोई स्क्वीज कर रहा है, राइट और नॉट गाइस? एग्री और नॉट? है ना? अच्छा, जब भी अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा, कोई उसको एक्स एक्सिस के अबाउट खींच रहा होगा, दैट मींस इट इज एक्सपेंडिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज इफ लाइक दिस गाइस, है ना? इजंट इट? कैन यू गाइस रिमेंबर दीस थिंग्स? इसको रिमेंबर कर लोगे तो ग्राफ हो जाएगा आसान, है ना? ओके, सुपर. मल्टीप्लिकेटिव इन y, हाउ टू make this concept in our mind, right? Whenever we are having an expression y is equal to f of x and I want to know कि y is equal to f of x divided by alpha का ग्राफ कैसा आएगा, right? So I'll use this particular thing in those cases. जैसे for example, if I know how to draw the graph of y is equal to x square by 4, right? And I want to know y is equal to x square by 4 का ग्राफ कैसा आएगा, right? So if I replace every y over here by 4y, मुझे क्या मिल जाएगा? 4y is equal to x square, यानी कि y is equal to x square by 4, right or not? है ना? इक्वेशंस के अंदर तो हम ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, यही चीज हमको ग्राफ में कैसे दिखेगी? 2 केसेस होंगे अगेन. किसके? अल्फा की वैल्यू क्या है उसके ऊपर, ठीक है? इफ दिस अल्फा इज
ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, है ना, लेसर देन 1, तो ग्राफ एक्सपैंड्स अलोंग y एक्सिस. y एक्सिस कौन सा? वर्टिकल. तो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ ऐसा खिंच जाएगा. किसका ग्राफ खिंच जाएगा? जो पहले वाला था, जो पहले वाला फंक्शन था उसका जो ग्राफ होगा उसको एज इफ हम ऐसे खींच लेंगे तो वी विल गेट दी दूसरा वाला ग्राफ जो कि हमको डिजायर था. राइट और नॉट गाइज? राइट और नॉट? एग्री? एग्री? सुपर्ब गाइज, है ना. इफ दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, इफ दिस अल्फा जो कि यहाँ पे 4 था, ये 4 ग्रेटर देन 1 होता है, राइट. तो अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 के ग्राफ पे जाना है, तो मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग कंप्रेस कर दूंगा, कंप्रेस कर दूंगा, राइट, कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा. एवरीबडी क्लियर विद दीज टू थिंग्स? These two things, multiplicative in x and multiplicative in y, right? We will learn that. We will learn that by we will be clearing it using graphs as well. But at least clear this theory right now, है ना? If you have all of these 4 points, that is additive in x, additive in y, and multiplicative in x and multiplicative in y. If you know these 4 things, your graph making will be a very easier process. Right? I hope you guys are clear with this. If not, go through these things again. You will definitely get it. Right? I'll tell you in graphs what is happening. Right? I'll tell you in graphs what is happening. All right? Okay. So let's take graph number 1. All right. It's a very easy thing. That's why I'll take it directly. है ना? If somebody say कि draw the graph of y is equal to x minus x plus 2 का होल स्क्वायर, राइट. एंड यू नो कि y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? दिस ब्लैक वन हुआ है, दिस ब्लैक वन का ग्राफ, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, दिस इज y is equal to x स्क्वायर का. क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर x 0 डालता था मुझे मिलता था. जब मैं इस ग्राफ के अंदर इसके अंदर x 1 डालूंगा y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब मैंने इसके अंदर x का वैल्यू -1 डाला, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है. Isn't it guys? Isn't it easy? है ना. जब मैंने इसके अंदर और भी कोई वैल्यूज डाली and so on, if I plot, right, I'll get points like this, right or not? And once I join all of these points, I'll get the graph of y is equal to x square, right? है ना. Everybody clear? Everybody clear or not? Everybody clear or not? सुपर यार, बहुत ही इजी सी चीज है ना. अगर हमें इसका ग्राफ पता है और मुझे इसके ग्राफ पे जाना है तो इक्वेशंस के अंदर मैं क्या करूं? x की जगह क्या डाल दूं? x plus 2. राइट और नॉट गाइज? राइट और नॉट? और जब भी मैंने x की जगह x plus some positive number डाल दिया, my graph moves along horizontal axis and positive number डाल दिया, that means towards लेफ्ट हैंड साइड बस इसको खिसका दो, है ना. तो ब्लैक वाले ग्राफ को 2 यूनिट अगर पुश कर दो हर एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट, आई एम सेइंग गाइस, ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना. लुक एट द ग्राफ केयरफुली. अर्लियर दिस वाज 0,0. If I push this point by 2 units towards left hand side, will I reach here or not? Will I reach here or not? Horizontally push करना है, सिर्फ horizontally push करना है. Everybody clear? है ना. -2,0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ग्रेट, सुपर यार, फोड़ दोगे. ठीक है. फिर बात करते हैं इस पॉइंट की. इस पॉइंट को अगर मैं 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर दूंगा तो y का वैल्यू चेंज होगा क्या? हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा हूं इस पॉइंट को, तो y का वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं. सिर्फ वैल्यू किसका चेंज होगा? x का, और वो भी -2 यूनिट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं. तो 1 से 2 यूनिट पहले और चलना है. Will we reach -1,1 or not? -1,1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना. दिस वाला पॉइंट अर्लियर -1,1 था, राइट. इसको भी अगर मैं हॉरिजॉन्टली पुश कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 यूनिट्स, will I reach to -3, -3, +1 because y का वैल्यू चेंज नहीं होगा. Will I reach here? इस पॉइंट को अगर 2 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा इधर आऊंगा, और इस पॉइंट को अगर 2 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा इधर आ जाऊंगा. राइट और नॉट?
each and every point is shifted towards left by 2 units when I replaced x by x plus 2. That means this pink wala graph right over here, each and every point is shifted by 2 units, guys. Each and every point, right, is shifted by 2 units, and the shape of the graph remained same, right? Each and every point is shifted towards left by 2 units. I hope everybody is clear with this thing, right? So the graph that we get now is what? किसका graph है ये? Y is equal to x minus 2 का whole square. Everybody clear? Each and every point is shifted towards left by 2 units, है ना? अच्छा, if I want to draw the graph of y is equal to x minus 3 का whole square, है ना? And that too from y is equal to x square से, है ना? तो मैं क्या करूं इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए? क्या करूं? एवरी x को आई नीड टू रिप्लेस बाय व्हाट? x माइनस 3, इजंट इट? x को x माइनस 3 से रिप्लेस किया, ग्राफ हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगा, लेकिन राइट में करेगा कि लेफ्ट में करेगा? ये वाला ग्राफ इसके अंदर डाला ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर डाला, क्या डाला? x माइनस 3. तो 3 units this graph will shift towards right. Everybody clear or not? है ना? तो earlier this was 0,0. Earlier this was what? 0,0. By shifting it 3 units towards right, what I'll get? क्या मिलेगा? 3,0. Isn't it, guys? Isn't it easy? Easy है कि नहीं है? है ना? अच्छा, ये वाला पॉइंट पहले 1,1 था. If I shift it 3 units towards right, y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, राइट? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 4,1, isn't it? तो 4,1 लाइज ऑन दिस ग्राफ, isn't it, right? है ना? और ये पॉइंट -1,1 है ना? तो y तो चेंज होगा नहीं, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं. -1 को 3 यूनिट आगे बढ़ा दो. पहला यूनिट बढ़ाओगे 0 आएगा, दूसरा यूनिट बढ़ाओगे 1 आएगा, तीसरा यूनिट बढ़ाओगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो 2,1 विल लाई ऑन दिस ग्राफ और नॉट, गाइज? है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में अगर मैं हर पॉइंट को 3 यूनिट्स राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूं तो व्हाट आई गेट अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 3 का whole square, this blue one over here, guys. Right or not? So we need not to put x का value into that and get a value of y every time. हमको ये करने का जरूरत नहीं है, because अब हम थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया है ना? क्लियर और नॉट? जब भी x को डाला x प्लस 2 तो ग्राफ 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में गया. अगर मैंने डाला x को x प्लस 2 तो वो ग्राफ राइट हैंड साइड में 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे दूसरे एक्सप्रेशन का ग्राफ आ जाएगा. राइट और नॉट, गाइज? एवरीबडी क्लियर विद मी और एवरीबडी क्लियर विद दिस और नॉट? है ना? क्लियर? सुपर, गाइज. रॉक कर दोगे यार, मुझे लग रहा है. ओके. अच्छा, अगर मुझसे पूछे y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर का ग्राफ, या पूछे y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का ग्राफ, आई होप आप सभी को पता होगा ये दोनों बातें एक ही हैं. राइट और नॉट? सिर्फ इसी का स्क्वायर करके लिख दिया है यार. स्क्वायर करना तो आता होगा. x माइनस 3 का होल स्क्वायर यही होता है. राइट और नॉट? तो दोनों चीजें जब सेम लिखी हुई हैं तो ग्राफ तो सेम बनेगा ही. राइट और नॉट? है ना? तो हो सकता है वो ऐसे दे दे, हो सकता है वो ऐसे दे दे. अगर ऐसे दिया है तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के. कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? राइट? अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, राइट? ध्यान से देखना. मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. फंक्शन बोल रहा हूं इसलिए यहाँ पे y लिखा है. इक्वेशन बोलता तो इक्वल टू 0 ले लेता. एवरीबडी एग्री? है ना? कर रहे हो? ओके. इक्वेशन के अंदर मैंने बताया था रूट्स होती हैं. रूट्स निकालते हो? रूट्स निकालना जानते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो वेरी गुड, गाइज. सुपर. अच्छा, यहाँ पे a0 नहीं होना चाहिए. a0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो इसकी डिग्री 2 हम नहीं बोल सकते. डिग्री मतलब x का हाईएस्ट पावर, है ना? डिग्री 2 नहीं बोल पाएंगे, और जब डिग्री 2 नहीं बोल पाएंगे तो क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे. राइट और नॉट, गाइज? एवरीबडी क्लियर? ओके, गाइज. तो फंक्शन जो भी होगा उसका क्या बनेगा? ग्राफ.
फंक्शन का ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्वेशन का ग्राफ तो नहीं बना दोगे, इक्वेशन का तो नहीं बना दोगे ग्राफ? हाँ, इक्वेशन के लिए रूट्स है ना, इक्वेशन के लिए रूट्स, फंक्शन के लिए ग्राफ, ठीक है एवरीबॉडी। y लिखा हो, भले ही f ऑफ x लिखा हो, f ऑफ x का मतलब क्या है? x का एक्सप्रेशन, ठीक है, और ग्राफ के टर्म्स में हम उसी को y बोल देते हैं। एवरीबॉडी क्लियर विद दीज टू थिंग्स, है ना? ओके, और जहां भी दिस ग्राफ कट्स x एक्सिस, कट्स x एक्सिस, मैं उसको बोलता हूं उन पॉइंट पे जो मेरे एब्सिसा की वैल्यू होती है, एब्सिसा यानी x की वैल्यूज, x की वैल्यूज, उसको क्या बोल देता हूं? रूट्स, ठीक है, रूट्स। राइट और नॉट गाइस? राइट और नॉट? एवरीबॉडी क्लियर? ऑल राइट, सुपर्ब, है ना? तो ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, मैंने क्या बोला? यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? सुपर्ब गाइस, किल कर दोगे। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इफ आई टेक a कॉमन, इफ आई टेक a कॉमन, व्हाट डू आई गेट? x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a, इजंट इट? ये मिलेगा, है ना? अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि जस्ट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर आउट ऑफ दीज टू थिंग्स, मेक अ perfect square out of these two things. How will you do? How will you do guys? X square plus 2 times of x into b by 2a, b by 2a। अगर ये टर्म में ध्यान से देखूं तो ये यही वाला लिखा हुआ है, b by ax, है ना? राइट और नॉट? राइट और नॉट? प्लस b स्क्वायर b by 2a का होल स्क्वायर, है ना? ये लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? और एक ऑलरेडी c बाय a मेरे पास था, ये वाला। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? एवरीबॉडी एग्री? एवरीबॉडी सेम चीजें लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? लिखी हुई है। ओके गाइस, अगर इतना समझ में आ गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है, गेम बहुत ही इजी है, देखना ध्यान से। Can I write this whole expression right over here? Right over here, ये पूरा जो मैंने ब्लू जहां तक पहुंचा है, this whole expression, can I write it as x plus b by 2a का whole square? Can I write it? है ना? इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं। और क्या बच गया? और क्या बच गया? प्लस c माइनस b स्क्वायर, नो नो नो, c बाय a माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, दिस वाज होल स्क्वायर गाइस, दिस वाज होल स्क्वायर, राइट? माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर। एवरीबॉडी एग्री? समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं। कैन आई राइट इट लाइक दिस? लिख सकता हूं, है ना? और इन दोनों में अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या गया? c बाय a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अगर मुझे बेस सेम बनाया तो 4a का मैं मल्टीप्लाई अगर नीचे करूंगा तो 4a का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है। राइट और नॉट? राइट और नॉट गाइज? क्विकली देख लो ध्यान से, है ना? अच्छा, व्हाट डू आई गेट? लास्ट तक क्या मिला था? a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, है ना? फिर क्या मिला था? प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? 4a स्क्वायर। Isn't it? ये मिला कि नहीं मिला? और ध्यान से अगर आपने इस एक्सप्रेशन को नोटिस किया हो, इस एक्सप्रेशन को, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, isn't it? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन जो डार्क किया मैंने ब्लैक के अंदर एज, ध्यान से देखना एवरीबॉडी, नजरें स्क्रीन के ऊपर, दिस और नॉट, माइनस डी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस थिंग लाइक दिस, ध्यान से देखना, a को
मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑल राइट, कैन आई गेट दिस एक्सप्रेशन और नॉट? कैन आई गेट दिस एक्सप्रेशन और नॉट? दिस एक्सप्रेशन और नॉट गाइज? इजंट इट इजी? समझ में आया अब तक? अच्छा, और जो भी मैंने ए बी सी जो लिए थे वो कुछ कांस्टेंट्स ही तो थे, कुछ कांस्टेंट नंबर्स ही होंगे, राइट और नॉट? तो डिस्क्रिमिनेंट भी एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा जब ए बी सी अगर कांस्टेंट है तो, राइट और नॉट? और डिस्क्रिमिनेंट को ए से अगेन डिवाइड कर दिया, 4a से अगेन डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी अगेन अ कांस्टेंट और नॉट? ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा गाइस? कांस्टेंट फिक्स वैल्यू देगा कि नहीं देगा? एंड दिस इज अगेन अ फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है ना? और ए तो हमने माना ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इजंट इट? तो आई कैन राइट y is equal to ax square plus bx plus c as a times x plus b by 2a का whole square minus d over 4a. Everybody agree with me or not? Everybody agree with me or not? Every quadratic function can be written like this, can be written like this, right or not? And why we are writing this? Why we are writing this? अगर किसी ने ऑब्जर्व कर लिया हो तो मैं उसको बता दूं कि अगर मुझे ग्राफ के ट्रांसलेशन से ये चीज रिलेट हो रही है कि x की जगह x प्लस सम कांस्टेंट डाल दिया तो ग्राफ किधर जाएगा, और y की जगह y प्लस माइनस सम कांस्टेंट डाल दिया, ये वाला कांस्टेंट, तो ग्राफ किधर जाएगा? तो आई होप ही गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ this transformation of quadratic functions तो easily, right or not? किसी भी quadratic function के ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ हम बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके y is equal to x square से, right or not? Everybody agree with me or not? Again I'm saying guys, again I'm saying this is a constant. Why this is a constant? Since b is constant, a is constant, b by a will again be a constant, है ना? इतना तो मुश्किल नहीं है, अगर b कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है तो b by a भी कांस्टेंट होगा, इतना मुश्किल तो नहीं है। और b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज अ कांस्टेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 4a दिस विल अगेन बी अ कांस्टेंट। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ठीक है, एवरीबॉडी? Superb guys. Okay, let's look at the concepts now. है ना? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? y is equal to x square का ग्राफ हमको बनाना आता है। This black one, this is 0,0, this is 1,1. Again, I'm plotting this point so that you guys can relate. Class 10th students specially, right? है ना? तो इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ आ जाता है। अगर मुझसे पूछे आप y is equal to x square minus 2 का ग्राफ बना दो, तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर हर y को क्या डाल दूं? क्या डाल दूं? क्या डाल दूं? y प्लस 2, और जैसे ही डाला y प्लस 2 मेरा ग्राफ 2 यूनिट नीचे मूव कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो दिस वैल्यू विल गो 2 यूनिट्स नीचे, 2 यूनिट नीचे जाना है सिर्फ, x विल रिमेन सेम क्योंकि वर्टिकली मूव करवाना है। तो ये पॉइंट कितना आ गया? ध्यान से देखो, 0,-2, राइट? सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x तो सेम ही रहेगा अगर बिल्कुल नीचे ले जा रहे हैं तो, है ना? अच्छा, इस वाले पॉइंट को 2 यूनिट्स बिल्कुल डाउनवर्ड्स लेके जाओ तो क्या आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? व्हाट इज द पॉइंट? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, कितने? -1, राइट और नॉट? राइट और नॉट? 1 को 2 यूनिट पीछे की तरफ ले जाना है तो 1 फिर 0 फिर -1 ही तो आएगा। ओके, सुपर। ये कितना आ जाएगा? 1, x will remain same and this will be equal to -1, राइट? अच्छा, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? क्लियर और नॉट? सिर्फ इस ग्राफ को 2 यूनिट ऐसे मान लो, ऐसे उठाया और 2 यूनिट नीचे ले गए और वहां रख दिया, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर है ना? अच्छा, अगर मुझे इस y is equal to x square से इसके ग्राफ पे जाना होता, अच्छा, तो दिस पिंक वन वाला ग्राफ ओवर हियर इज y is equal to x square -2 का। एवरीबॉडी क्लियर है ना? अच्छा, अगर मुझे y is equal to x square के ग्राफ से
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ग्राफ पे जाना होता, राइट, ये मुझे बनाना आता है, ये बनाना होता, क्या करता, y को क्या डाल दूंगा, y माइनस 2। जैसे ही आप इसके अंदर y को y माइनस 2 डालो, आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये एक्सप्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आप इस ग्राफ को उठा के 2 यूनिट ऊपर ले जाओ, है ना, तो आपको ये वाले फंक्शन का यानी ब्लू वाला ग्राफ मिल जाएगा। देखो ब्लू वाला ग्राफ को, ब्लैक और ब्लू को कंपेयर करो, ब्लैक और ब्लू को कंपेयर करो। अर्लियर इट वाज 0,0, 2 यूनिट ऊपर ले जाओ, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, नहीं होगा, सिर्फ बाय चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इस पॉइंट को 2 यूनिट ऊपर ले जाओ, कितना हो गया, ये x will remain same and this will be equal to 3, isn't it? देखो 3 पे पहुंच गए हैं। तो each and every point of this black वाला graph is shifted by 3 units so that we can get a graph of what? We can get a graph of y is equal to x square plus 2. I hope everybody is clear now. Everybody is clear now. 2 यूनिट पूरे ग्राफ को ऊपर उठा के रख दो, आपको ब्लू वाला ग्राफ यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ मिल जाएगा। दिस ब्लैक वन इज शोइंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज मेंशन्ड इन द स्क्रीन गाइस, लुक एट इट केयरफुली, राइट। रेड वाला ग्राफ ये जो है किसका है, ये पिंक वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो y को कितना डाला था, y प्लस 2, इसलिए 2 यूनिट्स ग्राफ नीचे, एंड सो ऑन। एवरीबडी क्लियर? एडिटिव्स वाले हो गए x के और y के। आई होप बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर क्लियर। Multiplicative I'll be including now. Everybody clear with these 2 things, है ना? Okay, let's talk about this one. I know ये y is equal to x square वाला ग्राफ किसका है, ब्लैक वाला, y is equal to x square का। So this is 0,0, again this is minus 1,1, this is 1,1 over here, this is minus 2,4, right or not? If you put x equals to minus 2, will you get 4 or not? मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना, सुपर यार। जब x equals to 2 डालोगे y is equal to 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, सुपर। So you got the graph of y is equal to x square this way. Once you know this, you can draw the graph of this y is equal to x minus 3 का whole square। कैसे, कैसे, just shift it towards positive x axis by 3 units each and every point, है ना, each and every point 3 यूनिट शिफ्ट करा दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को, ब्लैक वाले ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट करा दो, इस वाले को भी 3 यूनिट शिफ्ट करा दो, तो ऐसा मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एवरीबडी क्लियर? सुपर भाई, सुपर, यू गाइस गोना किल दिस वे यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को इसका ग्राफ मिल गया तो मुझे बोले आप इसका बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जो भी ये वाला ग्राफ आया है इसके अंदर y को क्या डालूं, y को क्या डालूं, y माइनस 2, isn't it? y को y माइनस 2 डालूं इसके अंदर, तो ये मिलेगा, देख लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर गिव्स y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, राइट और नॉट, राइट और नॉट गाइज। यानी कि इसके ग्राफ को मैं वर्टिकली तो मूव करूंगा क्योंकि y को रिप्लेस करा है, और y माइनस 2 डाला है, माइनस डाला है किसी नंबर को, इसीलिए आई टेक दिस ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड्स। कितने यूनिट से, 2 यूनिट से, राइट। तो ये वाला ग्राफ तो पिंक वाला हमने बना लिया था, इसका y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर से। एवरीबडी एग्री विथ मी और नॉट? ये ग्राफ तो बना लिया था 3 यूनिट शिफ्ट करा के ब्लैक वाले को, हर एक पॉइंट को। अच्छा, जब यहां से यहां पहुंचना है तो y को y माइनस 2 डाला, तो हर एक पॉइंट को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करा दो, 2 यूनिट शिफ्ट करा दो ऊपर, है ना। तो ये पॉइंट पहले 3,0 था, y का वैल्यू 0 था x एक्सिस पे, अब ये कितना हो गया, x will remain same, y will change, so this is 3,2, right or not? Earlier this point was what, ये कितना आया था, इसको 3 यूनिट शिफ्ट कराने के बाद इधर से कितना आया था, कितना आया था, 4,1। इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करा दो इस पॉइंट को, तो आप इस ग्राफ पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 4,3। एवरीबडी इस ग्राफ के पॉइंट को 2 यूनिट ऊपर पहुंचा दो, आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो ब्लू वाला ग्राफ किसका आ गया,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, राइट? एवरीबडी क्लियर? अच्छा, भले ही आपको बोले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बना दो, या आपको बोले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 का ग्राफ बना दो, एक ही बात है। समझ गए? दोनों चीजें सेम लिखी हुई है यार, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। एवरीबडी एग्री विथ मी और नॉट? एवरीबडी एग्री विथ मी और नॉट? भले ही मैं बोलूं आप इसका ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू, भले ही बोलूं इसका ग्राफ बना दो, दोनों बातें सेम ही तो है, एक्सपैंड करके लिख दिया बस। राइट और नॉट? राइट और नॉट गाइस? एवरीबडी क्लियर? ओके गाइस, सुपर, बहुत ही बढ़िया है। ओके, दिस इज अनदर ग्राफ, राइट? स्क्रीन को पॉज करना, रिलेशन देखना। अगर मुझे इस ग्राफ से इस ग्राफ पे जाना है, पहले मैं इस ग्राफ पे जाऊंगा, ठीक है? तो क्या करूंगा, इस ग्राफ को लेफ्ट साइड, इस ग्राफ को राइट साइड में 1 यूनिट शिफ्ट, ठीक है? राइट में 1 यूनिट शिफ्ट, तो आई विल रीच टू दिस ग्राफ, है ना? और इसको y के जगह y प्लस 2 डालूंगा, तो आई विल रीच टू दिस एक्सप्रेशन। y को y प्लस 2 डालूंगा तो आई विल रीच टू दिस एक्सप्रेशन, और यहां पे x को x माइनस 1 डालना था, ठीक है? अच्छा, तो ये ग्राफ डाउनवर्ड्स मूव करेगा, डाउनवर्ड्स। तो देखो, पहले राइट में 1 यूनिट एंड देन 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, इस वाले ग्राफ को किया, तो वी गेट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, दिस ब्लू वाला। राइट और नॉट? राइट और नॉट? Just relate these things by pausing the video. If you are seeing the video later, right? You'll get to know कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है वही तो किया है यार। ओके, सुपर। अच्छा, मल्टीप्लीकेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं, है ना? अच्छा, इफ आई नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, विच इज द ब्लैक वन वाला, राइट? एंड आई वांट टू मूव टू y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ, व्हाट विल आई डू? या तो इसमें दो चीजें होंगी ब्रोस, इसमें दो चीजें होंगी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें से दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे? लुक एट इट केयरफुली। अगर एक तो क्या बोल सकता हूं, हर एक x को डाल दूं 2x, इसके हर एक x को डाल दूं 2x, तो x की जगह पे 2x डालो तो क्या मिलेगा? 2x का होल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स x स्क्वायर। राइट और नॉट? ये मिलेगा, राइट? या फिर कोई कहेगा सर मैं अगर y के जगह y बाय 4 भी डाल दूंगा तो भी तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसके अंदर ब्लैक वाले के अंदर y के जगह y बाय 4 डाल दूंगा तो भी तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, गलत थोड़ी है उसमें कुछ, मिल जाएगा, ठीक है? तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, नंबर, जब भी मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जिसको मैं अल्फा बोल रहा था स्लाइड्स के अंदर, अगर वो 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, है ना? जब भी x को रिप्लेस करता हूं अल्फा x से और अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जब भी y के जगह पे अल्फा y डालता हूं तो भी अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट ही करता है, लेकिन किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट और नॉट? तो मैं जो पहला केस लेने जा रहा हूं वो ये रहा, वो ये वाला, x को रिप्लेस कर दो 2x को, तो ग्राफ को किसके अबाउट कॉन्ट्रैक्ट करवा दें? किसके अबाउट दबा दें? x एक्सिस के अबाउट, क्योंकि अल्फा इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1। आई होप आप सभी को पता होगा 2 इज ग्रेटर देन 1। दिस ओवर हियर, दिस थिंग इज अल्फा। ध्यान से देख लो, स्लाइड्स भी देख लो अगर भूल गए हो तो, राइट? तो इस ब्लैक वाले ग्राफ को अगर आप कंप्रेस कर दो तो आपको ये पिंक वाला ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पिंक वाला ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस ब्लैक वाले को अगर आप दबा दोगे तो आप पिंक वाला ग्राफ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हो सकता है ये कलर पिंक ना हो, लेकिन थोड़ा रेड जैसे ही, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम क्या बोलते हैं इसको, आई हैव कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? तो कंसिडर कर लेना कि ये पिंक है मेरी तरफ से, ठीक है? अच्छा, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, है ना? तो अंदर की तरफ ही जाएगा यार, कंप्रेस कर रहे हैं तो। सो लुक एट दिस ग्राफ नाउ, है ना? और कितने फैक्टर से कंप्रेस हो गया?
ट्वाइस फैक्टर से, राइट। अगर मैं बोलता कि 9x² का ग्राफ कैसा होगा, 9x² के केस में मुझे अल्फा 3 चाहिए होता तो वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाता, राइट। 9x² के केस में मुझे अल्फा 3 चाहिए होता, वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाता, यानी 4x² के भी अंदर लाई करता पूरे का पूरा 9x² वाला। अगर मैं आपको बोलता 16x² का ग्राफ बना दो, y is equal to 16x² का, तो और भी अंदर, राइट। आई होप यू गाइज आर सीइंग द ट्रेंड, क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अल्फा 1 से बढ़ता जा रहा है ग्राफ और अंदर जाता जा रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है, राइट। अगर अल्फा 1 से छोटा होता है तो एक्सपेंशन होता है, तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं y is equal to x²/4 का ग्राफ बना दो, तो आप y is equal to x² के अंदर x की जगह पे क्या डालोगे, x/2 डालोगे, अल्फा कितना है, हाफ, तो ग्राफ फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, देख लो ध्यान से, ड्राइंग पे ध्यान मत देना, आइडिया पे ध्यान देना, ऐसा हो जाएगा, फैल जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, ऐसा एक्सपैंड हो जाएगा, ये वाला ग्राफ, कौन सा वाला, y is equal to x² वाला, राइट और नॉट। और जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होता है तो देखो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। और अगर इस पे जाना है, अगर ये बनाना सीख गए तो y को किससे रिप्लेस कर दें, y +2 से, प्लस से करा तो इस पिंक वाले ग्राफ को 2 यूनिट नीचे ले जाओ तो आपको ये ब्लू वाला ग्राफ यानी कि y is equal to 4x² - 2 का ग्राफ मिल जाएगा, राइट और नॉट। I hope everybody is clear with this thing, right? If you still have any doubts regarding graphs, do let me know in the comment section. हम हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी चीज ग्राफ से रिलेटेड जो है वो अधूरी ना रह जाए और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई हैव गिवन टुडे यू गाइस ग्रास्प ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।